So parabola first, we have to like start with the second degree equation y plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, right? This represents the equation of parabola if h square is equal to ab and del is not equal to 0. You know now what is the value of del? Del की value क्या थी? What was that? Del. Anyone? Help me out on this. Del. ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. This is del, right? Where A is the coefficient of x square, B is the coefficient of y square, and C is the constant term. H is the coefficient of 2xy, G is the coefficient of 2x, F is the coefficient of 2y, right? This is del. ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square, right? So this is the first condition when we are saying this second degree equation must be the parabola, right? This is the first definition. Okay. Yes, sir. Second, when I'm saying like a coordinate is given in this form t square plus t plus 1 and t square minus t plus 1, right? P is any point where t is the parameter, right? Where t is the parameter, find locus of the point P. You have to find locus of the point P when t is the parameter and t is represented as t square plus t plus 1 and t square minus t plus 1. क्या लोकस बनवा होगा, कैसा इक्वेशन फॉर्म हो रहा होगा? जस्ट ट्राई. I'll request everyone, please switch on your cameras. This is a very famous question. ये काफी सारे डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है, राइट? सो थोड़ा सा ध्यान से. You have to find locus of the point P where t is the parameter, right? T is the variable, t is the parameter. Then we have to find locus of point P. See, in this like case, right, I can take h is equals to t square plus t plus 1 and k is equal to t square minus t plus 1, right? I have to assume h and k. Now, if I'll add both this term, so I'm getting subtract both this. H minus k is equal to 2t or t is equal to h minus k by 2, right? I can put the value of t in this case. H is equal to plus 1. So what I'm getting?
therefore h is equal to h minus k the whole square plus 2h minus 2k plus 4. This will be h minus k the whole square minus 2h minus 2k plus 4 is equal to 0. Can you see this कि x और y रख दूं तो x square plus y square minus 2xy minus 2x minus 2y plus 4 is equal to 0. ये इक्वेशन ध्यान से देखो तो a is equal to 1, b is equal to 1, h is equal to 1, h square is equal to ab. Del आप निकाल के देख सकते हो, that's coming not equal to 0. So this must be the equation of पैराबोला. पैराबोला को रिप्रेजेंट करने का ये एक बहुत प्यारा तरीका होता है. मैंने तो बहुत सिंपल फॉर्म में दिया, जब टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन दे दिया एंड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन दे दिया. ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस वन और ए वन टी स्क्वायर प्लस बी टी वन प्लस वन भी रहता, तब भी इसी फॉर्म में ये ऐसा ही वर्क करता. राइट. you'll नॉट बिलीव, बड़े अजीब अजीब से आते हैं इक्वेशंस. राइट. जैसे इसी को एक और दिखाता हूं मैं. थर्ड, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए ही बात कर रहा हूं. राइट. प्रूव दैट दिस इज द लोकस ऑफ पैराबोला. ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब लोकस ऑफ द पैराबोला मतलब पार्ट ऑफ द पैराबोला है. कंप्लीट पैराबोला दे या ना दे, बट दिस मस्ट बी द लोकस ऑफ पैराबोला. पैराबोला के लोकस आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे यूज होते हैं. राइट. सर पिछले क्वेश्चन के सी क्या आ रहा था, सी क्या आ रहा था हमारा? तो 4 राइट, +4. कुछ यहाँ पर लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा. ऐसा करता हूँ दोनों हाँ तरफ. सर, मिल गया, मिल गया. वेरी गुड वेरी गुड. क्या आया? ये इसको स्क्वायर स्क्वायर करके सारे स्क्वायर को हटा देने से 4xy = a² + x + y होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना है बस. वेरी गुड. वाई द होल स्क्वायर आप एक्सपैंड कर दो. वेरी गुड. केवल हिम्मत करना था, नहीं? हाँ. हाँ. 4xy. राइट. सबको एक तरफ आप ले आए. देखें, ए बी एच तीनों आपके पास गिवन है. राइट. सो दिस इज अगेन, ये कैसा पैराबोला बनता है मालूम? ये एक स्पेशल केस है पैराबोला का, और ये स्पेशल केस ऑफ पैराबोला ऐसा बनता. राइट. ऐसा कुछ दिखता है पैराबोला. ये एक्सेस है ऐसा, एक्सेस को टच करता. राइट. एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को टच करता हुआ ये पैराबोला बन रहा है. बट रियल डेफिनेशन जो आता है, राइट, वो आता है एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई. किसी भी कोनिक का ये है डेफिनेशन, उसमें ई की वैल्यू 1 हो जाती है. व्हाट दिस एस पी बाई पी एम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है जो आपको एकदम याद रखना है किसी भी कोनिक के लिए. ये एस पी बाई पी एम होता है. राइट. एक फिक्स लाइन होता है जो जिडम होता है. इसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है. राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? डायरेक्ट्रिक्स. राइट. यहाँ फिक्स पॉइंट होता है जिसको फोकस बोला जाता है. राइट. इसको एस से डिनोट करते हैं. राइट.
कोई भी पॉइंट जो मूव कर रहा है वो पी पॉइंट है। जो फिक्स लाइन है उससे आपने डिस्टेंस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, राइट। तो एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई, बट उसकी वैल्यू अगर 1 है तो एस पी इज इक्वल टू पी। ये डेफिनेशन। अगर ये कहीं भी दिख गया तो जो लोकस है, ये जो पी मूव कर रहा है, वो जिस पाथ में मूव कर रहा है वो पैराबोला का, राइट। जो पाथ मूव कर रहा है वो पैराबोला का पाथ है। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एंड दिस इज द पैराबोला, राइट। ये पाथ मूव कर रहा है, राइट। अगर मैं इसके जनरलाइज करूं डेफिनेशन, जो अधिकतर आपको एग्जाम में दिखेंगे, राइट, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। सर एसेंट्रिसिटी या वन। ई की वैल्यू 1 है बेटा। ई जो इसेंट्रिसिटी, एक यहां पर लिख दूं क्या, सभी की इसेंट्रिसिटी क्या क्या होती है? हाँ सर। इसेंट्रिसिटी 1 का मतलब होता है पैराबोला। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, 0 से 1, क्योंकि रेशियो है तो 0 से 1 एलिप्स। ई ग्रेटर देन 1 जब होता है हाइपरबोला। ई 0 होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ना, सर राइट। ई की वैल्यू √2 होती है आर एच, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह पढ़ते हो ना, जब ऐसा पढ़ते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ग्राफ बनाते हो कि पी बढ़ रहा है वी घट रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, आर एच, राइट। ये मैथमेटिक्स के ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आपको देख के आधे से अधिक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ई जब इंफिनिटी को चला जाता है तो ये होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट। ये व्हाट द मीनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 0 सर्कल दे रहा है, क्या मतलब होगा उसका? क्या मतलब होना चाहिए? ई 0 पर सर्कल दे दिया, ये तो बड़ा अजीब सा, क्योंकि हम लोगों ने ई का मतलब क्या लिया, एस पी बाई पी एम। मेरे को बहुत बहुत दिक्कत होती है, राइट। ये जब मैं लिखता हूँ हमेशा बोर्ड पे ना, आईटी का पढ़ाते वक्त, तो मेरे को सबसे अधिक दिक्कत वाली बात होती है, सब बच्चों पहली पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो मैं लाइक यूजुअली जो होता है ना कोचिंग में, आईटी कोचिंग में, दैट्स ऑलवेज कॉल्ड बाय द एब्रिविएशन के नाम से, लाइक सर का वो आपका एब्रिविएशन है। तो माइन माइन इज एसपीएम, सौरभ प्रियदर्शी मैथ्स, ठीक है। तो सौरभ प्रियदर्शी मैथ्स रहता है, और ये मैं यहाँ पर इसके डेफिनेशन में आता वही है, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई। तो जैसे मैं लिखूंगा सब लोग ऐसे करके देखें, सर आपने निकाला है ना। तो मेरा नहीं निकला है, ये बात पहले से चला आ रहा है, यही नेमिंग किया जाता है, एस पी बाई पी एम इज ई। और ई के डिफरेंट वैल्यूज होते जाते हैं, जिसमें लाइक वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। तो ई की वैल्यू 1 हो गई, राइट। 0 से 1 है, ग्रेटर देन 1 है, 0, राइट। तो यहां मैं ये बोल रहा था एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई है, राइट। जिसमें जेडम जो मैंने बोला ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है जो गाइड करती है, राइट। एस मेरा फोकस है, राइट। एस पी बाई पी एम, ई मेरे पास आ रहा है, राइट। एंड मैं बोल रहा हूँ एस पी बाई पी एम का जो रेशियो है वो 0 हो जाए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सर्कल बन रहा है वो, क्या सर मतलब? डायरेक्ट पॉइंट सर सर्कल बनेगा वो। वेरी सर गुड। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स शायद क्योंकि अगर वो छोटा होगा पैराबोला तो डायरेक्ट्रिक्स को दूर जाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हो? कोनिक बोलो। कॉनिक को अगर मतलब नैरो होना होगा तो डायरेक्ट्रिक्स को दूर जाना पड़ेगा। तो अगर वो इन्फिनाइट तक जाएगा तभी सर्कल बनेगा। इसको मुझे पुल करना होगा इन्फिनिटी पे, रादर देन कि इसे मुझे पुश करना होगा फोकस पे, क्योंकि इसको फोकस में पुश करूंगा तो वो मेरा पर्टिकुलर केस हो जाएगा केवल और केवल पॉइंट सर्कल के लिए,
राइट। बट हम्म मेरे को जो वर्किंग चाहिए फॉर ईच एंड एवरी केस, तो मुझे ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है उसको इन्फिनाइट लेना। ओके, यस राइट ना। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी कोनिक, राइट। तो कोनिक में, कोनिक की बोलने का मतलब है, यहाँ पर मैं हैश लगा दूं। हैश लगने का मतलब हो गया पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों के लिए जो काम करेगा, राइट। सबसे पहली बात होती है एक्सेस, राइट। एक्सेस, एक्सेस में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी हमारे पास है, मान लो मैं पैराबोला पर ही बात कर रहा हूं अभी। हमारे पास पैराबोला के लिए दो चीजें थी। क्या क्या दो चीजें थी? हम लोगों के पास दो चीजें थी किसी भी कोनिक के लिए। क्या क्या? एक था फोकस और दूसरा था डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, राइट। ये हमारी डेफिनेशन से, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दो चीजें हैं, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, राइट। A line perpendicular to the directrix passes through the focus is called axis, right? Perpendicular to the directrix passes through the focus is called axis of the parabola. लेकिन जब हम लोग यही बात कर रहे होते हैं इलिप्स के लिए या हाइपरबोला, पहले इसे नोट कर लो। सर एफ का डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस से जो भी बन रहा है, जो पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स से, और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से सेम होना चाहिए ना, क्योंकि फिर आएंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस दोनों से सेम होगा। आएंगे अभी थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे, राइट। सेकंड, एक्सेस के बाद, हाँ सॉरी, एक्सेस के बाद मैं यहां पर ये बता रहा था कि हमारे पास जो दो और पॉइंट होते हैं, दो और चीजें होती है। एक होता है इलिप्स और एक होता है हाइपरबोला, राइट। इलिप्स और हाइपरबोला में ये हमारे पास एक्सेस जो होता है, ये दो तरह से एक्सेस हो जाते हैं। ये जिस तरफ टिल्टेड होता है, राइट, इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस। और जो ये होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस। मेजर लेंथ अगर है तो ये पूरा मेजर लेंथ कहलाएगा, माइनर का लेंथ है तो ये पूरा माइनर का लेंथ, राइट। मतलब अगर ये -a,0 a,0 है तो ये पूरा 2a लेंथ जो है मेजर एक्सिस का लेंथ है, और ये 2b कहलाएगा माइनर एक्सिस का लेंथ, राइट। अगर a लिखा हुआ है तो ये होगा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, राइट। ख्याल रखना, सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस अलग अलग है। एक गलती से मेरा पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा, राइट। सो ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ये डेफिनेशन हो रही है जब हम लोग बात कर रहे हैं एक केसेस के लिए, जब हम लोग किसी भी कोनी के लिए बात कर रहे हैं। उसमें सेकंड केस पे मैं आया, जहां पर आपको लाया केस जब है आपके पास इलिप्स केस। नोट इट डाउन। ओके, हाइपरबोला में यही जो हमारे पास होता है, ऐसा फिगर बनता है। ये यहाँ पर इमेजिनरी यहाँ कट कर रहा, राइट। ये जो लाइन होती है वो इमेजिनरी कट कर रही होती है।
राइट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस, वही है मेजर माइनर का नाम हो जाता है ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। राइट, हम लोग यहाँ पर पहला काम वही कर रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। राइट, जो पैराबोला में एक्सेस था वो इलिप्स में मेजर एंड माइनर एक्सेस हो गया, जो हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस हो गया, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्टेक्स। राइट, वर्टेक्स, अब वर्टेक्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सेस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जैसे ये कोई फोकस है मेरा, 1,0 मान लेता हूं, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स लाइन था। ये जो एक्सेस है ये जहां पर कट कर रही है, ये x प्लस ए इजिकल टू 0 हम लोग रख लेते हैं कोई p पॉइंट से। ये दोनों के डिस्टेंसेस को हम इक्वेट किया हमने। राइट, ये -a,0 है जिससे पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन आता है y² इजिकल टू 4ax। ये y इजिकल टू 0 है। राइट, एंड वर्टेक्स जो आया वो 0,0 आया सॉल्व करके। राइट, ये वर्टेक्स 0,0 जो है कभी कभी ए से डिनोट करते हैं या वी से डिनोट करते हैं, दोनों ही चीजें रहती हैं, जैसा डिपेंड करे। राइट, नोटेशन आप जितने एएमसी के एग्जाम देखोगे, जितने भी पर्पल कमिट के एग्जाम देखोगे, वो सब आपको ए से डिनोट करेंगे। जितने भी आप एग्जाम देखोगे, आईटी लेवल के एग्जाम देखोगे, वहां पर इसको ए से डिनोट करते हैं। राइट, आप एस एल लोनी की बुक देखोगे वी से डिनोट होगा, इंडियन ऑथर की बुक देखोगे ए से डिनोट होगा, कंफ्यूज मत होना, वो नोटेशन है। राइट, फोकस का लेकिन एस का एस ही यूजुअली रहता है। राइट, ये जो भी वेरिएबल पॉइंट होता है वो पी होता है और ये एम। राइट, जेड। राइट, वर्टेक्स देन फोकल कॉर्ड। अब तो ये नाम ही है, जान रहे हो क्या है फोकल कॉर्ड। द कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस। राइट, कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, जैसे यहां पर मैं ये कहूं, ये कॉर्ड जो है अगर ये फोकस से पास कर रही है, ये कहलाता है फोकल कॉर्ड। बड़ा मजेदार सा होता है फोकल कॉर्ड पैराबोला, अलग ही जादू चलता है इसका। ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चन बना देता है, केवल फोकल कॉर्ड। राइट, ये है फोकल कॉर्ड ना। लेकिन यहीं पर दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होगा, फोकल डिस्टेंस। ये मान लो P है, ये Q है, ये S है। राइट, तो फोकल कॉर्ड, ये पूरी लाइन जो जा रही है PQ, उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। राइट, ये क्लियर है ना। राइट, दूसरा इसमें देखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें होता है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है इधर दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। राइट, जो एक पॉइंट से आप फोकस तक आ रहे हो, दैट्स कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। बट फोकल कॉर्ड जो बोल रहे हो आप, राइट, वो पूरा का पूरा हमारे पास जो लेंथ होता है उसे कहते हैं।
राइट, ये सभी में चलेगा, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में यही टर्मोलॉजी चलेंगे। ओके, फोकल कॉर्ड एंड फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है मेरे पास डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? व्हाट इज दिस ऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट y, वाई वाले ना। कोऑर्डिनेट। चल मैं, अगर मेरे पास ये पैराबोला गिवन है या इलिप्स है या हाइपरबोला है, तीनों केस में a line perpendicular to the axis intersect the parabola at 2 point, this is called double ordinate। परपेंडिकुलर होगा एक्सेस के एंड इंटरसेक्ट दिस, एल एल प्राइम इज ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट जो है, इफ डबल ऑर्डिनेट passes through the focus, राइट, उसका नाम चेंज होके हो जाता है लेटस रेक्टर। ये सब में चलता है, इलिप्स, हाइपरबोला, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। राइट, पहला है हम लोग को टर्मोलॉजी सब समझना, उसी टर्मोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। लेटस रेक्टम काफी यूजफुल है, काफी बार यूज होता है। डबल, सर इसका डायग्राम कैसे दिखाई देगा? राइट, ये पॉइंट होगा लेंथ ऑफ एल आर जो होता है 4a फॉर द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करें। लेटस रेक्टम, इलिप्स में लेटस रेक्टम का लेंथ 2b² बाई ए होता है, हाइपरबोला में भी वही होता है 2b² बाई। राइट, वहां पर प्रूफ करके भी हम लोग देखेंगे डबल ऑर्डर। राइट, नेक्स्ट होता है टीएबी। क्या फुल फॉर्म? टेंजेंट एट वर्टेक्स। राइट, सो you can see this is the simplest form। this is TAV, राइट, ये मेरा a,0 है। राइट, ये TAV है जो x इज इक्वल टू 0 है, ये एक्सेस y इज इक्वल टू 0। राइट, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस e इज इक्वल टू, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए लेंथ ऑफ एल आर 4a, कोऑर्डिनेट a,2a, a,-2। राइट, ठीक है। फोकल लेंथ जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एक चीज का केवल ख्याल रखना, कभी भी फोकल लेंथ की बात हो रही हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत करना। एकदम इसको ना एकदम पूरी तरह से एकदम
मतलब जो बोलते हैं ना एकदम दिमाग में पूरा बैठा लेना कि कभी भी आपके पास फोकल लेंथ की बात होगी तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, राइट। वो आपको ट्रैप करने के लिए रहता है। अगर ये एस गिवन है, ये पी गिवन है, और पी का पॉइंट मैंने एच कॉमा के दे दिया, तो मैं ये नहीं करने लगाऊंगा एच माइनस ए द एस पी का लेंथ मेरे से पूछ रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा एच माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन कि एस पी इजिकल टू पी एम होता है, राइट। ये मेरा 0 0 था और ये टीएवी है, राइट। सब टर्मोलॉजी है अब मेरे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है एक्स प्लस ए इजिकल टू 0। कैन यू सी दिस? ये बाय सिमेट्रिसिटी ये भी लेंथ ए ही है मेरे पास, राइट। सो अगर मैं एस पी इजिकल टू पी एम की बात कर रहा हूं तो ये पी एम, राइट। ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा? एच। यहां प्लस ए। से डिस्टेंस ए। हाँ। तो एस पी इजिकल टू पी एम का मतलब हुआ एस पी इजिकल टू ए प्लस एच, दैट्स इट, खत्म, राइट। Why to go for the distance? हाँ, तो हमें डिस्टेंस पर नहीं जाना, राइट। हमें हमेशा, और ये है सबसे अधिक आपको क्वेश्चन यहीं पर से देता है आपको ट्रैप करने के लिए कि एक, राइट, जहां भी वहां गड़बड़ हो तो हम चले जाते हैं। एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ये आपको एआईएमई का ही मैं क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, अभी दे ही देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं देता हूँ। देखो, लिख लिया है सबने ना? यहाँ पर ना एक और टर्म होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामीटर्स। मान लो पैरामीटर का क्या मतलब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये वाई एक्स लेके मैं इतना काम ना करूं, तो इसके ना पैरामीटर लिए जाते हैं। इसको पैरामीटर लेने के ना, पैराबोला में पैरामीटर लेने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक बहुत प्यारा तरीका ये होता है पैरामीटर लेने का, यहाँ पर यू कैन टेक द पैरामीटर एज एक्स को मैंने ए टी स्क्वायर लिया तो वाई अगर ध्यान से देखो तो 280 आ जाए। तो अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 81 स्क्वायर तो ये होगा 281। क्यू का कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर तो ये 282 होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। एक ये पैरामीटर होता है, कभी कभी आप देखोगे। सो एक्स को हमने लिया ए बाई एम स्क्वायर, वाई की वैल्यू -2a/m, ये भी लेते हैं, राइट। थर्ड, कभी कभी हम लोग इसे लेते हैं y1 स्क्वायर बाई 4a, y2, ये भी लेते हैं। ये तीन अलग अलग तरीके से इसका पैरामीटर लिए जाते हैं एंड सबके अपने इंपॉर्टेंस है, सबके अपने रोल हैं। तो आपको धीरे धीरे जाके पता चलेगा क्यों ऐसा किया गया, कि हमारी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए ये पूरी वर्किंग की जाती है, राइट। अब सर मान, लास्ट क्या है? क्या होता है? सर लास्ट वाला क्या है? y1 स्क्वायर बाई 4a, y1, मतलब मैंने y को ऑर्डिनेट फॉर्म में ले लिया, तो ऑर्डिनेट को पहले मैंने y1 ले लिया, तो उसके अगेंस्ट x आ रहा है y1 स्क्वायर बाई 4a, बट मैंने पहले x को लिख के बाद में y लिख दिया, राइट। एब्सिसा या ऑर्डिनेट फॉर्म जो कहलाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, राइट। पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड है, राइट। पी क्यू का कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको देके रखा हुआ है, राइट। पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/PS प्लस 1/QS, इसकी वैल्यू निकाल, ठीक होता है।
एस को हम एच कॉमा के ले सकते हैं। Listen, ये एच, एस को एच कॉमा के मत लो, ये तो फोकस हो गया ना, ये तो इस फॉर्म में है, मतलब ये मेरा ए कॉमा जीरो है बेटा। हाँ सर, मैं ए कॉमा जीरो ही ले। हाँ ठीक है, पी एस एंड क्यू एस। सर मेरा आंसर ठीक है क्या? अभी मैंने देखा, अभी देखता हूँ। और सॉल्व होगा राघव। अनुष्का वेरी गुड। सर ये सिर्फ T1 T2 के टर्म्स में लाना है ना आंसर? एकदम सॉल्व होके ना, केवल एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप की रह जाएगी बस। T1 T2 कैंसिल हो जाने, इंडिपेंडेंट ऑफ T1 T2 रहता है। आप कितना भी कैसा भी ले लो ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भी आप ले रहे हो तो हमेशा वो T1 T2 से इंडिपेंडेंट होता है। लेटस रेक्टम का हाफ के साथ में मैं करूं। सर 2 मिनट। सर आगे भी करना है क्या उसके? यही तो मेर मेर मजा आएगा। चल मैं दिखाता हूँ, सी। सर 2 मिनट। ओके, कर यस आया। सर पी एस और क्यू एस का वैल्यू मिल गया, मैं बस अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर जो फॉर्मूला किया ना वही है, बस उसी को मेरे को। सर यही है आंसर? एक मिनट। हाँ। और मेरा T1 और T2 में आ रहा है। हाँ, उसी को एलिमिनेट करना है बेटा। अभी देखते हैं, मैं करूँ। ऑलमोस्ट हो गया।
क्या किया राघव? राइट इट डाउन. Nuska, what you've done? Write it down. Beta. No, you get that result or you know this result? सर मैं कर भी सकता हूँ, वो बहुत इजी है करने के लिए, मुझे याद था, हाँ. मैंने अभी करा था कॉनिक सेक्शन. See, this is a comma 0, 81 square to 81, 8t2 square to a t2. Now we know that this is PQS, right? Slope of PQ and slope of PS both are same. The slope of PQ, y2 minus y1 by x2 minus x1, that will give you 2 upon t1 plus t2. Is this okay? 281 by minus 2a t2, a t1 square minus t2 square, well, cancelling out, we are getting this one, right? Similarly, PS is nothing but 281 upon a times t1 square minus 1. A cancel, 2 cancel. This is t1 square minus 1 is equal to t1 square plus t1 t. t1 square cancel out, t1 t2 is equal to minus 1. This result you have to remember. बहुत काम करेगा, बहुत जगह पर काम करेगा. Focal, when this is the focal part, then t1 t2 is equal to minus. सर मुझे लगा ही था T1 T2 -1 होगा, क्योंकि मेरा वही इक्वेशन आ रहा था, अगर एलिमिनेट अगर करना था तो उससे T1 T2 को वही वैल्यू होना था. And we know that 1 by PS means a plus a t1 square plus 1 by a plus a t2 square, right? And 1 by a is common out. 1 by 1 plus t1 square and t1 t2 is minus 1. So t1 square plus 1 into t1 square. दोनों को ऐड कर दिया तो this is 1 by a only, but I want to write this as 2 by 2a, or I want to write 2 by lr by 2. All are same. So I can say sp2a and sq are in harmonic progression. Right? Yeah. Yes. sp lr by 2, half of the lattice rectum, or sq are in hp. बट ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है t1 t2 इज इक्वल टू -1, बहुत बार यूज होगी ना. अभी इससे तो लाइक सर्कल्स भी बनने हैं आपके, इंटरसेक्शन भी आने हैं, तो इससे कम से कम 10 मोर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम दिस ऑन टेंजेंट्स के साथ में ना. ठीक है, ये तो लाइक इफ यू नो द रिजल्ट t1 t2 -1, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सर मुझे इसका नहीं पता था ये वाला प्रूफ, मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकल सकता था, मुझे लगा था प्रूफ डिस्टेंस फार्मूला से ही निकल सकता, वहां से भी निकल सकता. मैंने सबसे पहले इसलिए मेंशन किया था, डोंट यूज डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला इज हॉरिबल. हाँ, why to go for distance formula? Okay, or you can take the area of 3 point is 0. All are collinear. Huh? Okay. Now, so this is about, right, like we are writing, but the standard form of any of the conic is something like this. Let the directrix is ax plus by plus c is equal to 0. Let the focus is alpha comma beta, and any point P is given, right? So this is the perpendicular, and this
SPPM is equal to E, right? E times of PM. SP x minus alpha the whole square plus y minus beta the whole square is in the under root is equal to E times of PM is mod of AX plus BY plus C upon under root of A square plus. This is the definition of any of them. When E equal to 1, this will be the parabola, A greater than 1, less than 1, and blah, blah, blah. All the conics will come from this. Right? This is the equation of any of the cone, right? If I'm giving you one of the question, find length of L, length of latus rectum in this case. सर वो ऊपर वाला इक्वेशन एक बार दिखा सकते हो? हाँ। पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सारा बोला कि जरूरत ही नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। जरूरत ही नहीं है उसकी। वो बस हमेशा ये रखना, ये जो कोऑर्डिनेट का मतलब ही है कि आपको वो ट्रैप करने को रहता है। लगेगा कि बहुत बड़े कैलकुलेशन है, आप फोर्स होके कैलकुलेशन पर जा रहे हो, बट कैलकुलेशन होगा ही नहीं उसमें। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा जाएगा। सो ऑलवेज गो विद द फिगर्स, राइट। सबसे पहला काम किसी भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन में ना, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। एक बार ड्रॉ करके देखो, शायद वहां पर से ही काम बन जाएंगे।
राइट, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर कि क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करें। राइट, इसलिए मैंने ऊपर फिगर बनाया, ये SPPM और ZM ये बनाया, उसके नीचे ये लिखा। राइट, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम आपका कर सकता है। वेरी गुड कैसे, वेरी गुड, गो ऑन दैट। मैं स्टार्ट करूं क्या? ठीक हाँ 2 सेकंड सर, हाँ क्या? है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो जैसे आप ड्रॉ करोगे ना, वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। See, this is the line, right, directrix, and directrix is x minus y plus 1 is equal to 0. And this is the focus from the point 1 comma 3. If this is focus, this is directrix, we know that there must be a vertex, right? If I'll draw perpendicular from this, so this will be A, this will be A. So overall, this will be 2. If I'll find perpendicular length and multiplied with 2, then length of LR will be 2A into 2, right? That's 4A. So only I have to find length of perpendicular from 1 comma 3. 1 minus 3 upon 1 by root 2 is in the norm, right? 1 सर by लेकिन ये तो बस y² = 4x के पैराबोला पे काम करेगा ना, ये 2a वाला या किसी पे भी? किसी के लिए भी करेगा ना बेटा, फिगर देखो ना, ये तो यही फिगर है ना, हाँ। एक्जैक्टली ट्रू हुआ ना। मैं तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं किया था इसका, राइट, ऑल द पॉइंट्स, राइट। बट वो जो होता है ना y² = 4x, राइट, ये y² = 4x जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा पैराबोला बनेगा, राइट, ये एक्सेस ये जा रहा है, राइट। इसमें जितने भी चीजें होते हैं मैं सब लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स आगे के क्योंकि आपको लिखने हैं, राइट। इसमें 4 बनेंगे अलग अलग। दूसरा बनेगा y² = -4ax, थर्ड बनेगा x² = 4ay, फोर्थ बनेगा x² = -4ay, राइट। डायरेक्ट्रिक्स इज x plus a, फोकस दिस इज s जो होता है
a comma 0, vertex is 0 comma 0, length of LR is 4a, end point of LR a comma 2a, a comma minus 2a, right? Axis, equation of axis, y is equal to 0, EAB, tangent at vertex, x is equal to 0. Focal distance x प्लस ए, x मैंने ले लिया है, कोई भी पॉइंट होगा उस इसमें कहीं कंफ्यूजन या डाउट? हाँ, पैरामेट्रिक पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 280, इतने पॉइंट है जो किसी भी एक पैराबोला में मेरे को आने चाहिए। आई होप मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ। सर 2 मिनट में नोट करो। हाँ, ये नोट भी करने हैं और ये 3 आपको फिल करने हैं, तब पता चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग आई या नहीं। हाँ, तो टेक योर टाइम, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इसको पूरे को फिल करना है खुद से। सर पहला वाला क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, अच्छा राइट? ये वाली जो लाइन है, ये पीछे जो आ रही है ना, सेकंड फोकस है जो यहाँ पर है s, वर्टेक्स है जो ये मैंने, राइट, v, राइट, एंड पॉइंट ऑफ एल आर है, मतलब ये दोनों l, l डैश, लेंथ ऑफ एल आर है, ये वर्टेक्स, ये दोनों लाइंस हैं, राइट? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ये पूरे एक साथ में आने चाहिए, इससे क्वेश्चन आधे से अधिक हमारे हेल्प मिल जाएंगे क्वेश्चन करने को। सर, और एक्सटीरियर क्या है? लेटेस्ट रेक्टम के बाद वाला। पॉइंट ऑफ एल आर, एंड पॉइंट ऑफ एल आर, एल एल ओ, प्राइम। point. गुड पास।
डन। स्टार्ट करूं? सर 2 सेकेंड और लास्ट वाला बाकी है। ओके। इसमें दिक्कत जा रही है या? ओके। डन। डन। हो गया सर। डन सर। डन एवरीवन। कंफर्टेबल ना? बस यू हैव टू नो दिस ना कि क्या क्या है। कोई मेरे को डिस्कस करना है इसमें? जस्ट टेल मी। तो जरूरत नहीं। है ना? ना। तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करें इस पे वर्किंग। राइट। यहाँ पर राइट अभी तो हम लोगों को एक टर्मिनोलॉजी पता चल गई कि एग्जैक्टली हाउ टू वर्क फॉर दैट। राइट। अगर मैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करूं जैसे अ, दो पॉइंट मैंने दे दिया आपको। राइट। एक पॉइंट दे दिया मैंने लाइक फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस के पॉइंट जो है वो आपको गिवन है 4, -3 एंड वर्टेक्स दूसरा गिवन है वर्टेक्स 4, -1। राइट। ये दो चीजें आपको गिवन है तो यू हैव टू फाइंड
सर वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स था 4 कॉमा -1। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। उसी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है वन लाइनर। बट मैं पहले बोला था, फिर वही बोलूंगा। ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, कोऑर्डिनेट एक्सेस में कोशिश करो क्या हो रहा है उसको देखने की। क्वेश्चन डायरेक्ट सेंस में आएगा हाथ में। That is the case when your vertex is 0, 0 na. Those are the cases when you are saying the vertex is 0, 0. But in this case, vertex is not 0, 0. ओह Huh? See, in this question, this is given that the x coordinate is same, but y coordinate is changing. So x is 4, right? X is 4. So this is 4 comma -3, 4 comma -1 is the vertex, and 4 comma -3, y इक्वल टू 4 वो एक्सेस होगा। this is the focus, right? तो कुछ ऐसा मेरा पैराबोला बनना चाहिए, right? यस सर ये पैराबोला तो ये बनना चाहिए, एंड ये एक्सेस और ये बननी चाहिए, एंड दिस इज 4 comma -1, ये मेरे वर्टेक्स है, राइट? कैन आई से व्हाट इज दिस लेंथ? दिस इज ए a is what? 2, 2 right? And what form this is? ये जो हम लोगों ने चार्ट दिखा एक्स था, स्क्वायर इक्वल टू -4 ए हुआ है, x square is equal -4 ए हुआ है। to 4ay, but x square is equal to -4ay is for the case when we are saying that the vertex is 0, 0, right? But this case is vertex is 4, -1, right? So तो x -4 whole square स्क्वायर into -4a into y plus 1. Is this okay? यस सर। So draw the figure, right? Then you will get कि this is axis is parallel to x-axis or y-axis, na? Very good, Utkarsh. You get from the same way. यही किया तुमने? तो मैंने भी वही भी किया था, मैं बस भेजना भूल गया। Very good, very good, very good. See, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, right? Same question. Focus is given 3, 4. Vertex is given -1, 2.
Done. नहीं सर। मैं स्टार्ट करूं? सर लिख रहा हूँ। गुड 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 गुड। चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या किया बता। सर ऐसा आ रहा है, नीचे वाला टर्म हमें लिखना है। सर वैल्यूज निकल गए, अभी इसको फॉर्म कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। ये दिखाता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिक किया हुआ है, राइट। ये फोकस है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये मतलब जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑन, राइट। ये ऐसा पैराबोला, राइट। अब ये पैराबोला जो बन रहा है, इसमें वर्टेक्स गिवन है एंड फोकस गिवन है, राइट। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों से मैं पहले चाहता हूँ कि ये मैं निकाल लूँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एंड उसके बाद एस पी इज इक्वल टू पी एन का आइडिया ये, राइट। अब ये मेरे को अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए वी नो दैट कि अगर मेरे को ये वाली पॉइंट चाहिए तो ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। मान लेता हूँ ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस -50 है। -1, बीटा +4/2 इज इक्वल टू 2। अल्फा की वैल्यू आ गई -5, राइट, एंड 0, राइट। स्लोप गिवन है इस लाइन का, क्या है? 4 - 2 इज 2, इसका हाफ है, हाफ। तो ये हो जाएगा -2 होगा। इसका स्लोप, राइट। तो इक्वेशन निकाल दिया मैंने, y - 0 इज इक्वल टू -2 x - 5। तो y + 2x इज इक्वल टू 10 -10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ हाँ गया। सर, उधर तक हो गया, उसके बाद क्या करना है वो समझ। उसके बाद s सर अब हाँ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर ए इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला यूज कर सकता है। वेरी गुड। ये क्या राजीव, आखिरी में फंस गया। ये तो तुमने निकाल ही दिया था। यू नो फिजिक्स, एस पी इज इक्वल टू पी एन, राइट। द फर्स्ट definition of parabola. Okay. Okay. यस यस The simple one, but obviously you must know okay, how to deal with this, right? Right. So we can find each and everything of parabola, right? We can find each and everything of parabola, right? अब उसमें अलग अलग बातें होती हैं, लाइक हम लोगों ने पहले भी देखा था, जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, राइट। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे निकालना? When the point is x1 y1, right, on the curve
इनसाइड और आउटसाइड, ये तीन बातें थी ना, राइट, एंड आउटसाइड, राइट, तो इनसाइड, आउटसाइड एंड ये, राइट, थ्री थिंग्स आर देयर, राइट. If y1 square minus 4x1 less than 0 means s1 less than 0 inside, s1 is equal to 0 on the s1 greater than 0 outside. बट कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन जो आपके पास गिवन है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म वाला ही हो सकता है, अलग हो जाए. अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, यहाँ तो वाई स्क्वायर सामने दिख गया, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों गिवन हो तब कैसे करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं बोल रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ इसी में मैं, ये देखो एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए, नाउ यू हैव टू आंसर. क्या मैं बोला कि x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन द मोड. इस फॉर्म में मेरे को इक्वेशन गिवन, राइट. नाउ any point x1 y1 is there, right? How could you say this point is lying inside or outside? Anyone? सर पहले वाले में बाहर होता है तो क्या लेस देन होता है या ग्रेटर होता है? बाहर के लिए ग्रेटर देन, अंदर के लिए ग्रेटर. ऑन द के लिए जीरो. इसको कैसे जस्टिफाई करोगे प्लीज? सर ऐसे कर सकते हैं, अगर जीरो होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वाला पीएम था, हम्म. राइट नहीं, राइट हैंड साइड वाला पीएम था ना, और लेफ्ट हैंड साइड वाला एसपी था. ये एसपी है, ये जो गिवन है ये एसपी है, और ये मेरा पीएम. हाँ तो इसमें हम अगर इक्वालिटी साइन क्या इनइक्वालिटी साइन लगा दे तो हो जाएगा ना. अगर एसपी इज ग्रेटर देन पीएम तो बाहर होगा, और अगर एसपी इज लेस देन पीएम तो अंदर होगा ना. राइट, यहाँ ये एस है, ये पी है, ये एम है, राइट. अच्छा, ये अगर एसपी इज लेस देन पीएम तो अंदर होगा, एसपी इज ग्रेटर देन पीएम तो बाहर होगा. अब ये इक्वल टू रहेगा तो ऑन द कर्व है, ऑन द, राइट. हाँ. राइट, और अगर पी एम मेरा बड़ा हो जा रहा हो एसपी से, राइट, मतलब तो अगर एलएचएस इज ग्रेटर देन आरएचएस तो फिर बाहर होगा, और अगर आरएचएस इज ग्रेटर देन एलएचएस तो अंदर होगा. वही ना सर? यस. एसपी और पीएम में एसपी का लेंथ अगर बड़ा हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन आउटसाइड, राइट, और पीएम का लेंथ बड़ा हो जा रहा है तो इनसाइड. अपने आप यहां से ही आपको पता चल सकता है, राइट ना. अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात याद है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हम लोगों ने रखा था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक्स स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करना था? एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू, राइट. तो उससे अगर मैं लूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4a x है इस पे आएगा वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस एक्स वन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आएगा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. ये हमें ये यूज करना होगा बार बार, तो प्लीज ख्याल से टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, राइट. तो मैं थोड़ा सा जल्दी में ही रख रहा हूँ इसको ना, तो बहुत बड़ी चीज है नहीं. मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, बट आप खुद से करके रखोगे तो आपको याद रहेगा, और ये रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है.
क्या कि इफ आई एम सेइंग कि मैं दोनों से टेंजेंट लिया, एक यहाँ से टेंजेंट लिया हमने और एक यहाँ से मैंने टेंजेंट लिया, राइट, दोनों तरफ से मैंने टेंजेंट लिया। ये पॉइंट जो है एक T1 स्क्वायर कॉमा 2 8 T1 पर है, ये पॉइंट जो है एक T2 स्क्वायर कॉमा 2 8 T2 पर है, राइट। ये कहीं P पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट निकालो जल्दी से। सर जनरल इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन y square is equal to 4x है, that's the reason the point is given 8t square comma 280। सर नहीं, जनरल इक्वेशन टेंजेंट की टी वाई वाली। ओ सॉरी, ये देख लो विजुअली सर, ये याद रखना ना। नोटिफिकेशन आया? यस। उत्कर्ष वैसे आप तो चेस पे नहीं जा रहे हो? चेस का मैच चल रहा है अभी। तो कौन सा? अभी वहां एक इसका फीडे वाला भी चल रहा था ना, 3 4 स्टूडेंट तो गए हुए हैं। अ, अभी अभी तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता टूर्नामेंट्स में। भी नहीं कर रहा है। मतलब आज आई थिंक 1-2 साल से मैंने टूर्नामेंट छोड़ दिए हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करता है कि नहीं? यस। सब टीचर्स वगैरह पे खेलता, लाइक उत्कर्ष के साथ बहुत बार खेला। मेरे साथ नहीं खेला है लेकिन। मैं 1500 अबव के साथ खेलता हूँ। हाँ वो भी है, मैं 900 हूँ, 94। मैं भी। अभी एक 1600 के साथ डेली मैच खेल रहा हूँ। मतलब डेली हार रहा है ये बताता है? हाँ वो लाइक डेली वाला मैच। मतलब मैं पूछ रहा हूँ डेली हार रहा है ये बता रहा है? सर अभी तक हारा ही हूँ, लेकिन पहला वाला जीत सकता हूँ शायद। क्योंकि मेरा पहले रेटिंग 1200 था, क्योंकि खेला नहीं, लेकिन फिर हारता गया तो 400 हो गया। हम्म। क्योंकि 200 300 रेटिंग कम होता है एक हारने पर, जब ही पहली बार खेलते थे। ओके, स्टॉक फिश पे लेवल किस लेवल पे खेलता है? यस सर। स्टॉक फिश पे मतलब कंप्यूटर के साथ में किस लेवल पे खेलता है? कंप्यूटर के साथ, कभी कभी मैक्सिमम के साथ, कभी कभी 15 1600 के साथ। स्टॉक फिश 4 तक मैं खेलता हूँ जब भी टाइम मिला। 4 मीन्स कितना हुआ, क्या रेटिंग हुई? तो शायद 700 800 नहीं। हाँ। स्टॉकफिश 4 शायद 3800 नहीं, पता नहीं, बट मुझे जितना याद है अभी का 4000 है। सो मेरा लेवल अभी स्टॉकफिश 15 है। 15 पे, वाह। तो मैं 4 के साथ कभी कभी तो मैं जीत जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। स्टॉकफिश 4 मतलब 700 रेटिंग। अच्छा, तो तभी जी रहता है नहीं? किसमें मजा आएगा, क्या रेटिंग पे? क्या सब? क्या रेटिंग पे खेलने पे मजा आएगा? स्टॉकफिश 25। 25 काफी चैलेंजिंग हो जाता। उसको कोई नहीं हरा सकता आई थिंक। तो हाँ, वैसे मजा तो वही आता है, ये आता है, ये एम है, ये जीएम है और ये एएम है, ध्यान से देखो, जीएम एंड एएम। ये दोनों नंबर का जीएम है, ये दोनों नंबर का एएम।
राइट, तो दोनों एम जी एम। और एक हम लोगों ने शुरुआत में ही किया था, वो था एच एम। क्या था एच एम का, क्या था? वो एक पर्टिकुलर केस था जब ये ए कॉमा जीरो पर हम लोग काम कर रहे थे, राइट, ए कॉमा जीरो से पास किया था। और ये था पी एस क्यू। तो लाइक ये पर्टिकुलर केस था, राइट। इस समय 1/SP+1/SQ जो आया था वो 2/2A आया था, 2A के साथ में ये HM आया था। लेकिन अगर ऐसा केस रहेगा तो ध्यान से देखो, ये जो नंबर आया मेरे पास, तो यहाँ का केस के लिए हम लोगों ने देखा था T1 T2 क्या आया था उस समय? माइनस -1। अगर T1 T2 -1 आ जाए तो ये जो नंबर है ये क्या आएगा? -A कॉम A टाइम T1 + T2, राइट। और -A का मतलब हुआ कि ये हमेशा किस पे रहेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे रहेगा, राइट। डायरेक्ट्रिक्स पे रहेगा। और T1 T2 -1 आने का एक और मतलब होता है, क्योंकि दोनों का स्लोप ये 90 डिग्री भी हो गया। इतनी सारी चीजें हो गई। ये देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर हमेशा रहेगा, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, राइट। एंड अगर मैं देख रहा हूं तो पी एंड क्यू को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा हो। बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ में आपके पास यहाँ पर। सर वो A T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर होगा ना? कौन सा बेटा? ये अगर A T1 स्क्वायर और A T2 स्क्वायर का GM ले तो अंडर रूट रहेगा ना। हाँ, अंडर रूट XY होता है ना? हाँ, हाँ हाँ। A T1 T2। ये पूरे को आपको अच्छे से ख्याल पे रखना है, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, राइट। एंड इस पर कल हम लोग इस पर, अच्छा, कल ज्योमेट्री हम लोग करेंगे, लेकिन जरा सा मौका मिलेगा तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग करके छोड़ेंगे, जिसमें विल डू कॉर्ड एंड नॉर्मल, राइट। काइंड ऑफ कॉर्ड एंड नॉर्मल कोशिश करना है कि ट्यूसडे तक मैक्सिमम हम लोग को इसको खत्म करना। सर्कल जियो में क्या शुरू कर रहे हैं? मैंने तो प्लान किया है सेवाज से, या उसके पहले से करना है तो बोलो। मेरे तो मन है सेवाज, नहीं सर, से बस से ही चलेगा। लॉस, फिर विल्सन उसी में आ जाएगा, उसी के बाद पपॉज आ जाएगा, और बर्गर्स आ जाएगा, तो सबके सब एक साथ में आते जाएंगे। उसी में बटरफ्लाई आ जाएगा, राइट। तो वो सब कनेक्टेड। हाँ, बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है, मतलब यूल एंजॉय दैट। कृषि सही है ना, ठीक है ना? सर हमने बीच में टेबल ड्रॉ करी थी, अगर आपके पास कोई टेबल का फोटो है तो वो भेज सकते हो, क्या टेबल चेक पे? कर लूँगा मैं। क्या टेबल? वो हमने टेबल करी थी स्टार्ट में, वाई स्क्वायर सारी वाइज, हाँ, ये वाली। तो उसके अगर आपके पास फोटो है तो भेज देना प्लीज़, कि फिर मैं चेक कर लूँगा। यस, तभी मैं पहले भेज ही देता हूँ। सर मेरा अभी और एक क्लास है, मैं लीव। यस 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 यस, प्लीज। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।